Can I start? Okay, great. So, किसी को कोई doubts previous sessions में? Anything you want to discuss or I need to repeat? Anyone who has any doubts? किसी को कोई doubts हैं previous chapters में या previous sessions में और आगे चले हम? Ma'am, will you be doing a revision of all the chapters in the end? Okay. Hello, ma'am. हाँ जी. Yeah. I just wanted to know, will you be doing a revision of all the chapters in Yeah, the end? yeah, yeah, You will, huh? Okay. yeah. Maybe the last session we can just keep it for this thing, है ना? Okay, very good. Because I Yes. think there is too much of information. Yeah, right. Okay, thank you. Okay, so we are starting with old age, and I'm just sharing my screen. Great, it's unit 14 actually. Just give me a second. Okay, so we are starting off with the next unit, which is equally important, and that is related to old age. So, if you look at, we are going, स्टेज बाय स्टेज. हमने पहले इन्फेंसी के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा. इन्फेंसी को हमने रिलेट किया लैक्टेशन पीरियड में, दैट इज योर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, एंड नाउ वी आर मूविंग हेड विद इन्फेंसी. ओके, सो हाँ जी. अब देखो, जो आपकी ओल्ड एज होती है ना, उसमें वी ऑलवेज से दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फिजियोलॉजिकली व्हिच आर टेकिंग प्लेस. ओके, एंड जितनी भी आपकी फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, that actually have influence on your nutritional requirements. Okay, so line by line you can just go through your manuals, but I will be giving you the overall overview. Okay, now basically if you look at, as soon as we are born, we actually age. ठीक है, वो एजिंग का फिनोमिना अलग अलग फेसेस पे चलता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट एजिंग, एजिंग रेफर्स जहाँ पे आपकी बॉडी का जो वेयर एंड टेयर सिस्टम है, दैट बिकम्स वीकेंड अप, राइट, एंड दैट इज व्हाई यू से दैट नाउ यू आर एजिंग. ओके, सो वी यूजुअली से दैट समथिंग इन 60s एटसेट्रा. आप बोलते हो कि 50 प्लस भी आप एज ही कर रहे हो, but how gracefully you age, how well you age up, that is all dependent on the diet you take place, physical activity, your genetics, your heredity, things, and so on. Okay, so दो लोगों की एजिंग सेम एज पे बहुत डिफरेंट हो सकती है. You might be seeing two people who are in their 60s or 70s, and बेशक उनका जो chronological एज है, वो 65 के हैं, 70 के हैं, but you can see that when you physically see them or you nutritionally assess them, they both might be very very different. Okay, so the whole journey depends at what type of food they are eating, what type of physical activity they are indulging in, what was their genetics which was predominantly influencing their things, and so on. Okay, now, when we talk about any physiological state, right, you have to first understand कि जो भी physiological changes हो रहे हैं, that is actually directly related to your nutritional requirements. जैसे जब हमने प्रेगनेंसी में बोला कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, तो हमें पता चला कि ऑब्वियसली आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. सिमिलरली हमें पता चला कि बीएमआर जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कुछ कंडीशंस में बढ़ जाता है, जिसमें यू हैव प्रेगनेंसी, फीवर्स, इन्फेक्शन और लैक्टेशन, एंड इसलिए एक मदर की जो रिक्वायरमेंट होती है टोटल कैलोरीज की, वो भी बढ़ जाती है. तो सिमिलर वे में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट physiological changes which actually occur in aging, that are directly related to the nutritional intake or importance of certain nutrients. So first of all, please understand that the first important thing that takes place, और इसको ना सीधा सीधा बॉडी पार्ट से रिलेट करोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसमें जितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, यू स्टार्ट विद ईटिंग ऑफ फूड, राइट. व्हेन यू स्टार्ट टू ईट फूड, सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ पे जाता है, आपके माउथ में, राइट. वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, या तो दांत कमजोर हो चुके होंगे या दांत नहीं होंगे.
अब ये जो चीज़ है ना, इट सीम्स टू बी वेरी वेरी सिंपल, राइट, बट दिस इज द major, drawback which limits the intake of many many foods among, old age people. Everybody wants to have good food, everybody wants to have different different types of food, बट ओल्ड एज में जाके एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, खासकर जिनके अपने दांत कमज़ोर हो जाते हैं या टूटे होते हैं, दे कैन swallow, दे कैन chew, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स होते हैं जो उनको छोड़ने पड़ते हैं, बट टेक्निकली वी से दैट यू हैव टू मॉडिफाई द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फूड। अगर आप सैलेड खीरा ऐसे नहीं खा सकते हो, यू ग्रेट इट एंड यू ईट इट, सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। आपका खाना सबसे पहले आपके मुंह में गया, वहाँ पे दांत कमज़ोर है नहीं है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच विल हैव a nutritional impact। मोस्ट ऑफ योर फूड का intake can be limited to this factor। Then you see that this food will obviously going to your digestive tract, खाने में डाइजेस्ट तो होना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जैसे जैसे एज करते हो, ठीक है, वैसे वैसे यू विल सी दैट योर ऑल गैस्ट्रिक जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस, दे टेंड टू डिक्रीज। जो भी हमने पढ़ा था ना कि गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, या आगे चल के पेप्सिन होगा, लाइपेसेस होंगे, तो ये सबका जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एज करते हैं वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट व्हेन यू एज, आपको कम भूख लगती है, आपको बहुत अगर आप कोई चीज़ हैवी खा लो, आप शायद पूरा दिन भी कुछ नहीं खाओगे, बिकॉज फूड टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, योर ऑल ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम टेंड्स टू स्लो डाउन। सिमिलरली अगर माउथ में मैं सलाइवा की बात करूँ ना, तो एज यू एज, राइट, आपका जो सलाइवरी सिक्रीशन होता है वो भी कम हो जाता है। तभी आप अपने आसपास कोई भी एल्डरली, कोई भी ओल्ड एज पीपल को देख लो, दे ऑलवेज प्रेफर टू हैव दाल या सब्जियां जो थोड़ी तरी वाली या ज़्यादा सूखी ना हो। वाई? बिकॉज उनके केस में ऑलरेडी सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, सो दे कैन नॉट प्रॉपरली मिक्स द फूड इन देयर माउथ। अगर उसके ऊपर से आप बहुत ड्राई सब्जियां उन्हें दोगे, या सम फूड विच इज मेजरली ड्राई इन नेचर, दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर देम। सो दैट इज वाई वी सी कि उनके लिए अगर आप दाल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इट शुड बी लिटिल पतला पतला वन, because saliva is already decreased that ways। The other important thing is your taste buds, which is not very well explained here, but as you age, आपके जो taste buds होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा sensitive होते हैं इन्फेंसी में, ठीक है, बिल्कुल तेज, राइट, तभी हम बोलते हैं कि इन्फेंट्स को ये कम मिर्ची, कम सॉल्ट, कम ये दिया करो। एक रीज़न तो ये होता है कि उनका जो GI ट्रैक होता है वो बहुत फ्रिजाइल होता है, राइट, बट दूसरी चीज़ ये भी होती है, दे उनको आप उनके खाने में बिल्कुल हल्की सी मिर्ची भी डालोगे ना, बच्चों को लगता है कि नहीं बहुत तेज़ मिर्च है, राइट, वाई? बिकॉज देयर टेस्ट बड्स आर हाईली हाईली सेंसिटिव, वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड पे भी एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब आप जैसे जैसे एज करते हो, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। दिस इज़ अ कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम, कॉमन हाउस होल्ड सिनेरियो इन एट एवरी होम। आपको लगेगा कि भाई चीनी बिल्कुल ठीक है, मीठा बिल्कुल ठीक है, आपको लगेगा कि नमक बिल्कुल ठीक है, पर हमारे जो घर के एल्डरली होते हैं ना, वो ऊपर से नमक डाल डाल के खाएंगे या कहेंगे कि नहीं चीनी तो कम लग रही है और डाल दो, राइट, वाई? बिकॉज उनके जो, इट इज़ नॉट दे आर डूइंग सम जानबूझ के या समथिंग लाइक दैट। The only thing is कि उनके जो टेस्ट बड का सेंसेशन है that gets weakened up, so that taste develops at a higher concentration in comparison to young adults। okay, तो सबसे पहला चेंज GI ट्रैक में आया, intake of food related to your teeth and everything, low production of saliva, then low production of all your enzymes in gastric juices, which make a digestion process little slow down। okay, even we say कि जो total HCl production होता है, that is also decreased to about 10 to 15%। okay, then you will see that आपकी बॉडी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, basically gastric acid creates an acidic condition in stomach also na, right, so it is a natural immune thing। जितने भी बैक्टीरिया आप खाने के थ्रू खा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो इट गेट्स डिस्ट्रॉयड अप। बट विद एज व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज आपके स्टमक की एसिडिटी अगर थोड़ी कम हो रही है, HCl सिक्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो रिलेटेड टू सर्टेन इन्फेक्शंस व्हिच आर adults more prone to। okay, then you will see the major change is bowel movements। okay, 50% of adults we have this problem that they are constantly constipated। अब इसके पीछे का क्या रीज़न होता है कि आपका जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने के बाद वो जो खाना है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना आगे आगे की तरफ पुश होता है ताकि फाइनली इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, राइट। अब ये जो मूवमेंट होता है खाने को आगे आगे करने का विद द हेल्प ऑफ योर इंटेस्टाइनल मसल्स एंड एवरीथिंग, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, खाना आगे पुश होगा तभी वो आउटवर्ड्स जाएगा, राइट।
बट क्या होता है, व्हेन यू एज ऑल दीज मसल्स आल्सो टेंड टू गेट वीकेंड अप, ओके। तो वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, या तुम सिंपल लैंग्वेज में सोचो जो फूड मूवमेंट होता है, राइट, जिस बेस से फूड का मूवमेंट होना चाहिए, इट्स गेट स्लो डाउन, ओके। एंड दूसरा रीजन क्या होता है, बिकॉज दांत नहीं है, एपेटाइट उतनी नहीं है। तो आप देखोगे जो ये ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, इनकी डाइट में ऑल ओवर रफेज, फाइबर, उसका इंटेक कम हो जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन रीजन विच आई कम अक्रॉस इज कि क्योंकि दांत नहीं है तो हम नहीं खा सकते। एंड व्हेन वी हैव फैमिलीज वेयर इन मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग नाउअडेज, नोबडी हैव टाइम एक्सेट्रा, तो उसको ग्रेट करके खाना या चॉप या फाइनली चॉप करना या प्यूरी बनाना बिकम्स अ मसला। So but we should be very very ensure that especially in case of old age actually require lot of fruits and vegetables wala food group, ek to that will act as an antioxidant, they are aging, right? So antioxidants are really very important to counteract that, okay. And secondly, we need to include good amount of fiber in their diet to avoid or combat this constipation ka problem, okay. And that is also related to good intake of fluid, okay. नेक्स्ट ये टी फॉलन और ये सब मैंने कर ली है, चूइंग जो है वो मैंने बोल दी है। सो दीज आर दी सम ऑफ द मेजर थिंग्स यहाँ पे जो बताए गए हैं। बट देन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज आता है बॉडी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, ओके। दैट इज वी से दैट योर बॉडी का जो टोटल वेट होता है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, जिसको यहाँ पे हमने विस्ट्रल फैट लिखा हुआ है, फैट मास, एंड योर लीन मास, ठीक है। तो लीन मास क्या होता है, लीन मास इज आपकी हड्डियों का वजन, राइट। उसके अलावा जो विसरल फैट है, विसरल फैट भी से जो आपकी ऑर्गन्स के अराउंड फैट होता है ना, विच सम अमाउंट इज इम्पोर्टेंट, आपके हार्ट, आपके किडनीज, these are the important organs which are cushioned by this type of fat, but obviously in high amount that will create a problem. So now what is the major change in the body composition when you are getting old is कि आपकी बॉडी में ना इसका रेशो बदलने लग जाता है। जो लीन बॉडी मास है वो कम होता जाएगा, there will be shrinking of bones and everything, right? So that will result in loss of muscle fat, right? But on the muscle mass, on the other hand, what happens is there is a considerable increase in some of the adults which is related to their adipose tissue or visceral fat. तो lean body mass कम होता जा रहा है और जो fat mass है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसके केस में अगर मैं एनर्जी की बात करूं, दो दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन योर मैनुअल्स, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट विल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ओल्ड एज? एनीवन? Decrease, ma'am, because there's And less what is the reason? activity. Yes. And then one more thing, activity Uh, is fine, और कोई चीज थिंक, प्रेगनेंसी में बीएमआर क्यों बढ़ रहा था? New प्रेगनेंसी में baby is बीएमआर baby is getting food ना, बट इन ओल्ड एज हाँ, उनका कोई मतलब न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओनली दे नीड एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। ओके। सो बेसिकली सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट टाइम में आई टोल्ड यू कि जो बीएमआर है, ठीक है, दैट इंक्रीजेस इन सर्टेन कंडीशंस। और उसका एक रीजन दूसरा ये भी होता है कि जो आपके जिनकी भी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है ना, उनका बीएमआर भी ज़्यादा होता है। यू रिमेंबर आई गेव यू एथलीट्स का एग्जांपल कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग में या वर्कआउट्स में या एथलेटिक्स में होते हैं, तो उनके केस में कौन सा टाइप का मास ज़्यादा होता है? लीन मास ना, इन कंपैरिजन टू योर फैट मास, राइट। सो लीन मास इज योर एक्टिव मास। तो जिनके भी केस में लीन बॉडी मास ज़्यादा होता है, उनका भी बीएमआर जो है वो ज़्यादा होता है। बट विद एडवांसिंग एज व्हाट इज हैपनिंग इज ऑल योर ऑर्गन्स दे टेंड टू स्लो डाउन। बीएमआर क्या है? बीएमआर वही है ना कि 24/7 जो आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। So in advancing age, what happens is all your systems actually slow down, and this all over slowing down, increase in fat mass, decrease in lean body mass, then obviously decrease physical activity. That all result in decreasing the total energy requirements in case of elderly. That is why when we talk about EARs and RDA, you will see अभी आपकी मैनुअल में शायद एक अलग से टेबल गिवन नहीं है, पर अगर आप वो शॉर्ट रिपोर्ट देखोगे NIN की साइट पे डाल के, वहाँ पे यू विल सी दैट यू हैव डिफरेंट ER RDA टेबल्स फॉर एल्डरली, जिसमें नॉर्मल कंपैरेटिवली अडल्ट मैन और अडल्ट वुमेन के अगेंस्ट उनकी जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो कम दी गई है। इज दिस फाइन विद एवरीवन? इज दिस क्लियर? yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। एंड देन ऑब्वियसली द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैकोपीनिया, ठीक है, और द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, राइट। सो दैट इज अ कॉमन थिंग एंड वी यूजुअली से दैट 40-45 के बाद यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट योर कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक, बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू एज, राइट,
आपका कैल्शियम और विटामिन इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर 50s 40s वी से दे आर हाई रिस्क, उनका हाई रिस्क होता है फ्रैक्चर्स का भी। तो उसका क्या मतलब होता है, एक तो सार्कोपीनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोपीनिया इज व्हेन यू लूज योर मसल मास, ठीक है, you lose the strength, you lose the functionality of your bone, right? And that can actually impact their mobility, जिसको हम बोलते हैं कि quality of life. So there are many many studies in India जो elderly पे की गई हैं, जो वो ये देखते हैं कि what limits their mobility and so on. So one of the prominent reason related to that is what, sarcopenia, okay, the loss of muscle mass. The other important thing is obviously related to calcium and vitamin D. See, what happens is कि अगर मैं कैल्शियम और विटामिन डी की बात करूँ इन जनरली, we have to understand कि calcium and vitamin D are interrelated. Okay, it is true that you need to have good amount of calcium in the diet, but other important thing is that you also need to have good intake of vitamin D, क्योंकि vitamin D के बिना कैल्शियम आपकी बॉडी में उतनी efficiently absorb नहीं हो पाता है, ठीक है। अब vitamin D should also not be a problem in our country, right? Because vitamin D is a sunshine vitamin, right? तो हमारी कंट्री में सन निकलता है, धूप आती है, राइट? तो हमारी बॉडी जो है वो खुद से मैन्युफैक्चर कर सकती है विटामिन डी, अगर हम अपनी बॉडी को सन रेज से एक्सपोज करें। सो in Indian or being Indian, to be deficit in vitamin D, it is a little this thing, right? But unfortunately, we have more than 50% of our population who are actually vitamin deficit, okay? और ये विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होती है, बिकॉज एक तो विटामिन डी के डाइटरी सोर्सेज बहुत कम है। यू विल फाइंड सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी हेयर एंड देयर इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और some selective non vegetarian food items. Otherwise most of your plant sources, they do not contain considerable amount of vitamin D, or else they do not contain it at all, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑप्शन रहता है विटामिन डी का, सनलाइट। अब उसमें भी क्या मसला है कि हम अपनी पूरी बॉडी को सन में ऑब्वियसली एक्सपोज नहीं करते हैं, है ना। वी डोंट टेक सन बाथ्स, वी आर नॉट दैट कल्चरली प्रेवलेंट कंट्री जहाँ पे हम सन बाथ्स वगैरह लेते हैं। सो वी यूजुअली से कि 20-25 मिनट की धूप अराउंड इज सफिशिएंट आपकी बॉडी में एक्टिवेट प्रोसेस करने के लिए, बट वो नहीं हो पाता है। उसके ऊपर से यू हैव दीज फैंसी क्रीम्स एंड एवरीथिंग, सनस्क्रीन लोशंस एंड सो ऑन, राइट। सो दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द रेस बैक। जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज लाइक ये सनस्क्रीन लोशंस जो होते हैं एसपीएफ, राइट। सो दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर, राइट। सो अब जिसको सच में भाई कोई स्किन की प्रॉब्लम है, पीपल आर सेंसिटिव और एलर्जिक, उनके केस में मेरे को समझ में आता है। बट जस्ट यूजिंग एसपीएफ एंड एवरीथिंग 30 40 50 whatever, so this 30 40 50 is actually the percentage of rays that can be reflected back. तो अगर आपकी स्किन के ऊपर सनरेज पड़ी नहीं रही है, यू विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर दैट विटामिन, ओके। एंड दूसरी बात हमेशा याद रखना, आपकी डाइट में कैल्शियम जितना भी अच्छा हो, जब तक विटामिन डी नहीं होगा, यू कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट कैल्शियम। सो व्हाट हैपेंड वाज, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली ओल्ड एज बट ऑल ओवर थिंग। हमें अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारी इनटेक के साथ मसला कैल्शियम का नहीं है। We see all of the people having all these bone problem, osteoporosis, whatever, right? तो उसको पहले रिलेट किया गया था कि भैया आप कैल्शियम कम खा रहे हो, आपकी डाइट में कैल्शियम कम है। बट नाउ रिसर्च हैज emerged which says that it is not only calcium which is at fault. कुछ केसेस में कैल्शियम इंटेक ठीक है, द प्रॉब्लम इज विद योर विटामिन डी का इंटेक। तभी आप देखोगे आपके जितने भी ये सैशेज आपको मिलते हैं ना सप्लीमेंट्स के, दे आर ऑलवेज कैल्शियम एंड विटामिन डी हैंड इन हैंड। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में देयर इज मिनरलाइजेशन विच अकर्स पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बोन्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारी बोन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचा है, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू सम एक्सटेंट, और उसमें भी प्रोपोर्शन होना चाहिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का। अब यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप कैल्शियम ठीक खा रहे हो, आपकी हड्डियों का कैल्शियम विल बी नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, राइट। बट अगर आपकी डाइट में धीरे धीरे, अगेन इट इज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कैल्शियम का इंटेक कम हो गया है, ठीक है। तो भाई कैल्शियम का एक दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल्स भी मेंटेन होने चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई लोग कोई टेस्ट कराते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप होते हो, तो उनका ब्लड कैल्शियम लेवल निकल के आता है। तो अगर मैं ब्लड कैल्शियम लेवल तो मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, देन व्हाट हैपेंस इज, बॉडी को तो ये पता है कि भाई मुझे ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करना है, वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। दैट लेट मी वर्क आउट, अभी आई नीड टू मेंटेन माय ब्लड कैल्शियम लेवल, फेच आउट कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स, राइट। सो दिस इज डीमिनरलाइजेशन, यू आर डीमिनरलाइजिंग बोन। बट द गुड पार्ट अबाउट बोन का मिनरलाइजेशन इज व्हाट, कि जब आप कैल्शियम डाइट पे खाते हो, दैट कैन अगेन गो एंड गेट डिपॉजिटेड इन योर बोन्स। टीथ के केस में ये नहीं होता, कैविटी एक बार हो जाए तो जितना मर्जी कैल्शियम खाते रहो वो भरता नहीं है,
आपको डेंटिस्ट के पास जाके अपना दांत जो है वो फिल कराना पड़ता है. ओके, सो दिस continuous process of mineralization and demineralization takes place, but in old age again what happens is आपका डाइटरी इनटेक कम हो जाता है, आपके फूड ग्रुप्स पर्टिकुलरली विच आर रिच इन मे बी कैल्शियम और विटामिन डी, they also tend to decrease down. So there is constant फेजेस जहाँ पे आपका एक तरफ इनटेक कम हो रहा है और दूसरी तरफ आपके बोन का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड इफ यू डोंट करेक्ट दैट ऑब्वियसली योर बोन्स बिकम पोरस, जिसको आप बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. पोरोसिस मतलब पोरस एंड ऑस्टियो इज रिलेटेड टू योर बोन, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा. वो अगर एक हल्की सी सीढ़ी से भी उनका पैर चिटक जाएगा, दैट कैन लीड टू सीवियर फ्रैक्चर इन केस ऑफ एंडर. Okay, so these were some of the very important physiological changes. इसमें पूरे नहीं दिए गए हैं, but even the physiological changes are seen in case of kidney, because kidneys are your filtration unit. ठीक है, तो जैसे जैसे आप एज करते हो आपके जो किडनी सेल्स होते हैं which are involved in filtration and everything, they also tend to decrease down. Okay, तो जो हमारी बॉडी का elimination process होता है, and liver is associated with detoxification, तो ये सब बाकी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं. Okay, so these were the important physiological changes during old age. So now, do you want to discuss anything you want to add on? Ma'am, can you please Yeah, repeat about the kidneys that you mentioned? yeah. So kidney में basically से kidney is a filtration unit ना. आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, सो दैट इज अ यूनिट व्हिच इज रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन ऑफ योर बॉडी. सो वी यूजुअली सी दैट किडनी का जो फिल्टर करने की कैपेसिटी होती है वो एज के साथ थोड़ा कम हो जाता है. तो अ थिंग व्हिच आई डिडंट वांटेड टू मेंशन, जीएफआर, okay, glomerular filtration rate. Okay, so that needs to be maintained, but as you age आपका जो ये GFR है it falls down. So the rate at which your kidneys used to filter your blood when you were adolescent or young, it actually tends to slow down when you enter the old age. But it is not same for everyone. If you are physically active, you have a good diet, one person or one elderly might be different from the another one. That is a different thing. Is this clear now? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. Okay, okay. और किसी को कोई डाउट कुछ ऐड करना है? Can you explain demineralization again? Calcium का. या हाँ, तो डीमिनरलाइजेशन मतलब जब आप मिनरल निकाल रहे हो ना, ठीक है, और मिनरलाइजेशन हो गया जब आप मिनरल डाल रहे हो, राइट. सो यूजुअली दिस इज अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ मिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन व्हिच अकर्स इन बोन्स. तो अगर आप ठीक ठाक कैल्शियम विटामिन इनटेक खा रहे हो, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट जिन सर्कमस्टांसेस में आपका कैल्शियम इनटेक कम हो जाता है या देयर इज प्रॉब्लम विद विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो, तो उस केसेस में क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन दैट सर्कमस्टांसेस योर बॉडी टेक्स आउट कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स. ठीक है, तो जब ये बोन्स में से कैल्शियम निकल रहा है, मतलब आपके बोन्स में से मिनरल निकल रहा है ना, कैल्शियम इज अ मिनरल, राइट. सो दैट इज नोन एज डीमिनरलाइजेशन. बट द गुड पार्ट इज इफ यू पुट गुड इनटेक, आप अपने पेशेंट को खुद को अगर ठीक से कैल्शियम का इनटेक करवाओगे तो वो दोबारा मिनरलाइज भी हो सकता है. दिस इज फाइन. Thank you. Yeah. Yeah. Anything else which I need to repeat, or is there any doubt? Others? Okay. Then you might get a short note or something related to that. What are the nutrition related problems of old age? जो मैंने आपको कहीं ना कहीं तो बताई दी है, right? Osteoporosis. Now you're more increased proneness to fractures, etc., and that is basically related to inadequate intakes of your calcium and vitamin D. So you need to have good sources of calcium in the diet, and in certain cases you can also go in for supplementation. Okay. Then constipation we have discussed, right? The third important thing is anemia. ठीक है, अब anemia पे भी also I'll come. See, anemia is a very very problematic situation, मतलब a problematic disease. It affects people of all age groups. आप anemia को उठा के देख लो NFHS5 डेटा पे या WHO डेटा पे. Obviously, the severity is very very high among adolescent girls and pregnant women, but your elderly and school going children are equally affected. Okay, अब अनीमिया का मसला क्या होता है, सेम अनीमिया होता है आयरन की कमी से, बट दिस इज अ रॉन्ग नोशन कि वो सिर्फ आयरन की कमी से होता है. वी सेज दैट अनीमिया न्यूट्रिशनल अनीमियाज, जो न्यूट्रिशन सिकल सेल अनीमिया नहीं होता है, बट दैट इज नॉट न्यूट्रिशनल अनीमिया, उसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज रिलेटेड टू सेल स्ट्रक्चर, आरबीसी का सिकल शेप होना एंड ऑल दैट, राइट. बट जो न्यूट्रिशनल अनीमियाज होते हैं, दीज आर द अनीमियाज व्हिच अराइज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट.
तो 3 न्यूट्रिएंट की वजह से अनीमिया होता है, एंड दिस इज फॉर ऑल, नॉट फॉर old age specifically. So you have iron deficiency anemia, you have folic acid deficiency anemia, and what is the third type which you people might have come across? किसी को पता है? hemoglobin. नहीं, B12. Okay. So Vitamin the three C. types. No, vitamin C से नहीं होता. जो आपके न्यूट्रिशनल एनीमिया होते हैं, 3 टाइप्स के मेजर होते हैं, ठीक है. यू हैव आयरन डेफिशिएंसी, यू हैव फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, एंड यू हैव B12 डेफिशिएंसी, ठीक है. लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ओके. अब क्योंकि ये टॉपिक इज इंटर रिलेटेड, तो आई विल कवर इट हियर ओनली एंड यू कैन रिलेट दैट टू एल्डरली. तो ये ना अनीमिया यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया गया, लिखा हुआ है ना, डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन. सो दे आर टॉकिंग अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. Now, why iron deficiency anemia is a big problem in our country? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन बहुत कम होता है. आई कम ऑन टू दैट. दूसरी चीज़ होती है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज़ ऑल्सो हाउ यू नो व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर बॉडी. सो कई बार ये होता है कि शायद मेरा इंटेक ठीक है, पर मेरी बॉडी की एब्जॉर्प्शन के साथ कुछ इश्यूज है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रीडोमिनेंटली सीन इन केस ऑफ आयरन. ओके. आयरन के 2 फॉर्म्स सबको पता है क्या होते हैं? अंकु मैम ने कराए होंगे CFN 1 क्लास में. कैन एनीबॉडी टेल मी 2 फॉर्म्स ऑफ आयरन? Ferric and ferrous. Heme iron. Heme iron. हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन, ठीक है. हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली नॉन हीम से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन रिड्यूस स्टेट और वट एवर, राइट. और हीम आयरन होता है नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स में. अब हमारी कंट्री में आयरन का इंटेक क्यों कम होता है? मोस्ट ऑफ अस आर अगेन वेजिटेरियन, वी डू नॉट कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड्स दैट रेगुलरली, एंड उसमें भी आयरन की जो क्वांटिटी होती है ना, वो ऑर्गन मीट्स में ज़्यादा होती है. तो जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गन मीट्स खाएं, ठीक है. तो इसलिए क्या हो गया, हमारा डाइटरी इंटेक ही कम है. एंड दूसरा, ब्लड लॉसेस इन केस ऑफ women when they are undergoing menstruation cycles and so on, हो सकता है उनके ब्लड लॉसेस ज़्यादा हो. अब ये ब्लड लॉस के अंदर एक जो दूसरी चीज़ बच्चों में प्रीडोमिनेंटली देखी जाती है, पेट में कीड़े, वर्म्स का होना, ठीक है. सो दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन टोटल हीमोग्लोबिन लेवल्स. एंड देन यू हैव अ थिंग विच इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है. तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए ना, particularly non-heme, because we are dependent on plant sources. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, vitamin C helps. Okay. On the contrary, if you take chai, coffee along with your meals, that will decrease the absorption of iron. Okay. So if you are consuming a good, say कुछ सोयाबीन का खा रहे हो या राइस फ्लेक्स खा रहे हो जो आयरन, सो कॉल्ड आयरन रिच है, पर तुम उसके साथ चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, सो इन अ वे दैट विल रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. सो इन केस ऑफ एल्डरली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो उनका डाइटरी इंटेक कम हो जाता है ऑल ओवर, particularly with respect to iron, that is a problem. And secondary thing, see, iron requires an acidic media, ठीक है. और वो एसिडिक मीडिया क्या होता है तुम्हारी स्टमक में, राइट. सो आयरन एक्चुअली रिक्वायर्स दिस एसिडिक मीडिया इन फॉर्म ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस. अभी हमने ये पढ़ा कि जब आप ओल्ड एज में जाते हो, व्हेन यू एज, आपके जो पर्टिकुलरली HCl या गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन डिक्रीज डाउन हो जाता है ना, राइट. सो दैट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस आयरन एब्जॉर्प्शन. So it is not only the intake, but the way your body is utilizing or absorbing that. Is this clear? Is this clear? Concept of iron to everyone? Can you all hear me? मैम सॉरी, HCl वाला दोबारा बता दीजिए. HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गैस्ट्रिक जूसेस का भी सिक्रीशन कम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इट हैज इम्पैक्ट ऑन द एसिडिक लेवल्स, pH लेवल्स ऑफ योर स्टमक. और जो आयरन है वो हमेशा लो pH पे एब्सॉर्ब होता है. That is only in the old age, right? That this Okay. The यूजुअली बिकॉज when you Any age, time the pH नहीं, level goes up, हाँ, then it will affect. हाँ, या आपकी कोई स्टमक की सर्जरी हुई है, ठीक है, या स्टमक में कई लोगों को जैसे अल्सर्स होते हैं, तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें अ पार्ट ऑफ स्टमक हैज बीन रिमूव्ड, जैसे बariatric सर्जरी में होता है. तो उस केसेस में क्या होता है, द टोटल flow of HCl and gastric juices decreases, so that can also impact your iron. even if the gallbladder is removed, will that affect? ना, गॉल ब्लैडर इज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग. Okay. गॉल ब्लैडर होगा तो वो फैट के उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा. Okay. Clear? Is this fine? And if it is not very heavy for you all, can I also touch other aspect related to iron, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे? Yes, ma'am. Please do. Phytates and oxalic acid.
ठीक है, आई थिंक ये मैंने पहले भी बोला था। हम ये बोलते हैं कि नॉन हीम जो सोर्सेज होती हैं, दे बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन, वी आर डिपेंडेंट ऑन नॉन हीम सोर्सेज, दैट इज प्लांट सोर्सेज। बट यू नो द प्रॉब्लम विद प्लांट सोर्सेज, अगर मैं चाय कॉफी नहीं भी पी रही हूँ तो यू नो नेचुरली उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं विच इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बहुत लोगों का ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं मैं बोलूंगी, बट इन अ वे इट हैज बीन सो स्लगिशली यू नो एडवर्टाइज, पालक हैज आयरन, it does not. ठीक है, green leafy vegetables do contain some amount of iron, and we actually promote that because we don't have any option. I cannot ask my community to consume eggs and meat on daily basis ना, because of cultural things and so on. क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो हम बोलते हैं कि हरी सब्जियां, particularly पालक, that is not very good source of iron. Okay, and why so? Because all your green leafy vegetables, right, they have oxalates in them. Okay, they have high quantity of oxalic acid, मैंने लिखा है। ठीक है, तो तुम्हारी जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें किसका कंटेंट ज्यादा होता है? ऑक्सैलिक एसिड का। और आपके जितने भी ये होल पल्सेस होते हैं ना, उनकी जो आउटर लेयरिंग होती है, होल हो गया ना, ठीक है, तो जो उनकी आउटर लेयरिंग होती है, दे हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ फाइटिक एसिड। ठीक है, तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ऑक्सैलेट्स एंड फाइटेट्स। और जो ऑक्सैलेट्स और फाइटेट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं टेनिन्स एंड कैफीन, टेनिन्स चाय में होता है और कैफीन किस में होता है? कॉफी में। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि टेनिन एंड कैफीन दे टेंड टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, actually your oxalates and phytates are also inhibitors of iron, because when this particular food enters your body and it has high amount of oxalic acid and phytic acid, it actually forms an insoluble complex with iron, and something which is forming an insoluble complex in your body cannot be efficiently utilized or absorbed. Is this concept clear? What happens Please like repeat. iron, एक मिनट, क्या क्या, एक सेकंड, एक करके क्या? oxalic acid and phytic acid के वजह से what did you say last? वो नहीं समझा। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वो आयरन के साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन का यू नो ऑल ओवर एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीज आर नेचुरल इनहिबिटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दीज यू नो प्लांट सोर्सेज नेचुरली। इज दिस फाइन? So, ma'am, are you saying that green leafy vegetables, since you know, they contain high level of oxalic acid, right, and whole pulses, so this would inhibit the absorption of iron, so they should be taken in Yes. smaller amounts? नो, दे शुड नॉट, बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन ना। ये भी नहीं खाओगे तो कहाँ जाएंगे? तो तभी हम बोलते हैं कि अपनी मील्स के साथ स्पेशली ये टी कॉफी मत करो, वो और ज्यादा उसको हिंडर कर देंगे। एंड देन ट्राई टू हैव अ डैश ऑफ अ लेमन या कोई यू नो विटामिन सी रिच चीज उसके साथ, ताकि जो भी यू नो आयरन है उसका ठीक तरीके से आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन कर पाए। Right. मैम ठीक है, सो ग्रीन हाँ जी, विटामिन डी होता है क्या इसमें ग्रीन लीफी वेज में? ना, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। नहीं तो इट इज ऑल योर नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक सॉरी एग्स वगैरह में होता है। ठीक है, प्लांट सोर्सेज में बहुत मिनिमल अमाउंट में होता है। So, ma'am, what is to be recommended? So as a vegan I am concerned कि विटामिन डी का क्या करें? Vegan is a extreme you know you have some problem, if you don't mind asking me, मतलब आप vegan क्यों हो? No You have problem. some I allergy? left milk products. I was always vegetarian. Now I have left milk and milk products. हाँ, so that is out of personal choice, right? मतलब आप lactose intolerant या ये वो सब नहीं है। I am following naturopathy, ma'am. Okay, so see that is altogether a different science. I would not comment on that, right? But veganism is one of the dietary patterns जो बहुत strict dietary pattern है। ठीक है, तो उसमें obviously ये कुछ essential you know nutrients है जिसका intake becomes a problematic issue. Your vitamin D, your calcium, ठीक है, तो उसपे you need to focus on. Okay. Then I'll come on to one another thing, but let me complete this. Then obesity is the other Ma'am. important. Yeah. हाँ जी। How to increase for vegetarians? How do we increase the source of iron then? मैंने बोला ना कि चाय कॉफी साथ में मत लो। ठीक है, कम से कम उसका जो इनहिबिशन है वो कम कर सकते हो। Have you know vitamin C rich things along with that.
ठीक है, जैसे आप स्प्राउटिंग करते हो जो पल्सेस का, तो नेचुरली उसमें विटामिन सी कंटेंट भी बढ़ जाता है। एंड यू नो थिंग्स लाइक स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, दे डू टेंड टू डिक्रीज ये फाइटेट्स का कंटेंट आल्सो। ठीक है, सो यू हैव टू सी दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ डाइट यू आर कंज्यूमिंग एक्चुअली। So, ma'am, we have to give green leafy vegetables like palak, but with vitamin C. That's what you're trying to tell us, ma'am. या मतलब एक ये नोशन है ना कि नहीं भी हरी सब्जियों में आयरन बहुत ज्यादा उसमें होता है, तो आयरन होता है पर उसके साथ इनहिबिटर्स भी होते हैं। सो टू मेक योर बॉडी एफिशिएंटली यूटिलाइज दैट आयरन, have vitamin C in your diet along with that, so that will help in extra absorption capabilities from that particular thing. Okay, so like palak, methi, that is अब the. जैसे देखो मैं बताती हूँ, पहले के टाइम पे बोलते थे पोहा, राइस फ्लेक्स, पता है सबको, हाँ. है ना, उसको रिच सोर्स ऑफ आयरन माना जाता था। ठीक है, बट अभी अगर आप न्यू लिटरेचर देखोगे उसमें भी हम उसको उतना हाई नहीं मानते हैं, बिकॉज सी व्हाट हैपेंड वाज, ये राइस फ्लेक्स जो होते हैं, ठीक है, इसको इंडस्ट्री में क्या किया जाता था, दिस इज एक्चुअली चावल ना, राइट, चावल को प्रोसेसिंग के दौरान फ्लैट किया जाता था। ठीक है, और जब उसको फ्लैट किया जाता था तो वो आयरन के फ्लैटनर्स होते थे, वो जो मशीन या वो जो फ्लैट करने की चीजें होती थी वो आयरन से बनी होती थी, तो इसलिए हमें बोला जाता था कि भाई उसमें एलिमेंटल आयरन चला गया, तो इसलिए दैट इज रिच इन आयरन। नाउ विद इंडस्ट्री डेवलपिंग इन एवरीथिंग, व्हाट इज हैपनिंग, वो जो आयरन प्रेसेस है वो स्टील प्रेसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप पोहा को भी उतना हाई, मतलब जितना हम पहले 10 साल पहले बोलते थे उतना कंटेंट अब उसमें नहीं मानते हैं। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, बोला जाता है ना आयरन बढ़ जाता है। ठीक है, बट वी डोंट हैव एनी कंक्रीट स्टडीज व्हिच एक्चुअली गो बाय, क्योंकि वो एलिमेंटल आयरन होता है, और एलिमेंटल आयरन हमारी बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है उसके ऊपर देयर इज कांस्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन। So some studies do focus on that, and some studies say that no, nothing like that, because that is elemental iron and your body will have different absorption thing related to that. ठीक है, And ma'am, hemoglobin, like heme is iron and globin is protein. So maybe protein content more it can या increase. एब्सोल्युटली। तो कुछ केसेस में होता है कि अनीमिया है तो आयरन ठीक है, वो प्रोटीन का चक्कर हो, ठीक है, सो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट ये एक जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आयरन डेफिशिएंसी ही देखा जाता है, तो वी आर नॉट सेइंग अगर आप प्रोटीन भी अच्छी क्वालिटी का नहीं खा रहे हो तो आपको उस केस में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज बिकॉज ऑफ आयरन। इज दिस फाइन? So ma'am, when you say a dash of vitamin C included in the foods, is it okay that it is consumed during the day, or does it have to be taken along? Actually it has to be, it is better if you take along with meals ना। मैंने पोहा मॉर्निंग में खाया है, हाँ, राइट, अब मैं लेमन शाम को खाऊंगी तो उसका क्या होगा, उस मील के दौरान अगर आप खाओगे देन इट इंक्रीजेस। अच्छा, हाँ। सो अगर पालक ले रहे हैं तो ऐसे कोई भी चीज जो विटामिन सी है जिसमें वो साथ में, तो दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज। राइट, ओके। Then the next nutrition related problem is your obesity. So everybody is aware of that, right? Obesity means increase in weight, and as I have so as you know that obesity refers to increase in weight, right? So what happens is that in aging you are also more prone towards other chronic diseases. Chronic diseases, to understand, just heart diseases, which includes your hypertension or related diseases like diabetes and so on, right? So now what happens is that आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, आपका बीएमआर जो है वो भी स्लो डाउन हो रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल क्रिएट्स अ नीड जहाँ पे आप अपनी ऑल ओवर कैलोरीज को थोड़ा कम करें। अगर आप कैलोरीज को कम नहीं करोगे, एंड ऑब्वियसली सी हाउ मच एक्टिव यू आर, ओल्ड एज में आपकी एक्टिविटी कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स कम ही होती है, ठीक है, so that can result in energy, positive values of energy, so that can create a problem because overweight and then obesity it quickens up, and we have to understand here that obesity is actually one of the most prominent risk factors for developing other degenerative diseases. You might have come across, हम बोलते हैं कि अगर आप overweight या obese हो, डायबिटीज होने का रिस्क आप में ज़्यादा होता है, हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड डिजीजेस आप में ज़्यादा हो सकती है, blood pressure is also related to that. So obesity is one of the most khatarnak cheese during the elderly. And then on the other hand you have malnutrition. So whenever I have discussed
मैल न्यूट्रिशन आई हैव ऑलवेज डिस्कस कि ये दो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ये दो साइड्स होते हैं. एक तरफ ओबेसिटी माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर सर्टेन एडल्ट्स, बट देन यू विल सी दैट मैल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी वेरी आई जस्ट साइन द पेपर. ठीक है. सो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी जो है वो बहुत प्रोफाउंडली देखा जाता है. एंड दिस मैल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू थिंग्स लाइक पॉवर्टी. पॉवर्टी नॉट इन द सेंस कि को गरीब हो गया, राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विद रिटायरमेंट्स कमिंग अप, children moving out nowadays, they lose their financial इंडिपेंडेंसी, दे बिकम डिपेंडेंट. और जब आप अपनी सिर्फ पेंशन पे डिपेंडेंट होते हो, आपका जो इनकम रेट है वो कम हो जाता है. दैट ऑब्वियसली इफेक्ट्स और इट हैज इम्पैक्ट ऑन योर ऑल ओवर फूड चॉइसेस ऑल्सो. एंड देन अगर आप इसको सोशली भी देखोगे तो this financial thing is also another thing, but nowadays isolation, social isolation is also relatively profound. Elderly who are living alone, right, तो वो उनका अब शायद मन ही नहीं करता, बिकॉज सोशली दे आर सो आइसोलेटेड. तो उनका जो डाइटरी इनटेक है वो वैसे भी कम हो जाता है, राइट. एंड सिमिलरली द अदर थिंग इज लैक ऑफ नॉलेज. यू डोंट नो. जैसे अब हमने फाइटेट्स और ऑक्सैलेट्स की बात की, हम में से कितने लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली इन द हाउस टू नो अबाउट दैट? Okay, so these are certain problems which are related to your old age. Now एक चीज जो मैं यहाँ पे ओल्ड एज से रिलेटेड नहीं है, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग आयरन एंड एवरीथिंग, सी वी सेड दैट न्यूट्रिशनल एनीमियाज आर बेसिकली because of three things. You have iron, and then other two was folic acid, and the other one was your B12. अब प्रेगनेंसी में जो अनीमिया होता है, दैट इज प्रोफाउंडली बीइंग रिलेटेड टू डेफिशिएंसी इन आयरन एंड फॉलिक एसिड. ठीक है. तभी आप देखोगे प्रेगनेंसी में मैंने एक चीज बोली थी कि आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं. ठीक है. क्यों? बिकॉज दैट इज अ रिस्क पीरियड जहाँ पे आपका आयरन और फॉलिक एसिड का इंटेक शायद कम हो सकता है. फॉलिक एसिड के क्या सोर्सेज हैं? फॉलिक एसिड कम्स फ्रॉम फोलेट. ठीक है. एंड फोलेट मतलब लीव्स. तो जितनी भी तुम्हारी ये हरी पत्तेदार सब्जी हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड. ठीक है. सो दैट इज वाई जो जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम एंड विटामिन डी गोज हैंड इन हैंड, तो तभी प्रेगनेंसी में यू विल सी यू हैव द सप्लीमेंटेशन ऑफ बोथ आयरन एंड फॉलिक एसिड, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू सी आर प्रोफाउंडली डेफिशिएंट इन केस ऑफ योर प्रेगनेंसी. ठीक है. And third important thing which I would like to discuss here is vitamin B12. Okay. Now vitamin B12 की deficiency of iron is also very very prevalent, and you have to understand कि ये क्यों ज़्यादा profound है. Vitamin B12 is only present in foods of animal origin. No plant source has vitamin B12. ठीक है. तभी आपने देखा होगा बिकॉज इंडियंस आर प्रीडोमिनेटली वेजिटेरियंस, या जो भी हमने भी मैटर डिस्कस किया, तो उसके केस में यू विल सी दैट सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एक्चुअली विटामिन B12 डेफिसिट. ओके. अब मसला क्या है कि जो विटामिन B12 है वो खाने में तो मुझे नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आई एम नॉन वेजिटेरियन. ओके. तो भाई फिर क्या करना है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि आपकी बॉडी खुद से विटामिन B12 का मैन्युफैक्चर कर सकती है. योर बॉडी कैन एक्चुअली सिंथेसाइज विटामिन B12, बट इट रिक्वायर्स अ फैक्टर विच इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर. इंटरनल मतलब होता है ना, तो द वर्ड इज व्हाट? इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट. एंड दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय स्टमक. ठीक है. अब स्टमक ये फैक्टर रिलीज करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर इंटेस्टाइन में, एंड विद समथिंग रिएक्शंस एंड ऑल दैट विटामिन B12 कैन बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी. अब जब आप एज करते हो ना, तो क्या होता है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है विच इज रिलीज फ्रॉम स्टमक, कुछ केसेस में ये भी स्लो डाउन हो जाता है. या इन नॉर्मल एज ग्रुप्स अगर कोई स्टमक की सर्जरी हुई है, या कुछ ऐसा कैंसरस चीज़ है, ट्यूमरस चीज़ है जिसने इस इंट्रिंसिक फैक्टर के रिलीज को इम्पैक्ट किया है, इन दैट केस योर बॉडीज एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन B12 also tends to decrease down. Okay, so vitamin B12 in your intestine with microflora, microbiomes, it can be synthesized. अब दूसरी चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को फर्मेंट करके खाते हो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड आइटम्स में आपको कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन B12 मिल जाता है. व्हाई? बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को फर्मेंट करके खाते हो, इट इज ऑल माइक्रोब्स ना, एंड माइक्रोब्स हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन B12. तभी तुम्हारे इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का सिंथेसिस हो सकता है. ठीक है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? Ma'am, what will influence to increase the intrinsic factor? ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज ऑल इंटरनल. यू कांट डू एनीथिंग टू डू दैट. But the thing is that 50% of requirements can be met, because of this thing.
मैम उसका स्पेलिंग आप जरा चैट में लिख सकते किसका हो? किसका जो B12 सिंथेसिस करती है अपनी बॉडी खुद से। हाँ तो उसको तो इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू होता है, बस दैट्स इट, ये याद रखना। मैं लिख देती हूँ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आयरन एंड अदर थिंग्स एंड सो ऑन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी बताती हूँ, अब हम थोड़े टॉपिक से भी इधर हो जाते हैं, बट इट्स फाइन, यू शुड ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। आप लोगों ने पथरी सुना होगा, स्टोन्स होते हैं, Yes. है ना? गॉल स्टोन्स होते हैं और किडनी स्टोन्स होते हैं। अब जो तुम्हारे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं ना, नॉर्मली ओके, दे आर कोलेस्ट्रॉल इन नेचर, ठीक है, क्योंकि आपका जो गॉल ब्लैडर होता है इट कॉन्सेंट्रेट्स योर बाइल एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन दैट। तो इसलिए जिनको भी ये पथरी गॉल ब्लैडर में होती है, अगर जब उसका वो टेस्टिंग के लिए जाता है ना, जिसको भी कभी पथरी हुई हो या स्टोन्स हुए होंगे किसी के रिलेटिव्स के, तो वो जो स्टोन्स हैं वो टेस्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। और वो फिर आपको बताते हैं कि भाई अब आप दूध मत पियो, या अब आप ये हरी सब्जियां मत खाओ, या क्या करो, ठीक है। तो वो क्या होता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन इन योर बॉडी ना। सो जो आपके गॉल स्टोन्स होते हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू फैट एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। पर आपके जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें आपने सुना होगा ना, टमाटर मत खाओ, हरी सब्जियां मत खाओ, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो जिनकी बॉडी में कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है एंड दी स्टोन्स आर कैल्शियम इन नेचर, तो आपने कुछ चीज़ों में सुना होगा कि नहीं जी हमें दूध पीने से मना कर दिया, या हम ये नहीं खा सकते, हमें कैल्शियम कम खाने को बोला है, बिकॉज इट इज़ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन विच इज टेकिंग प्लेस एंड यू शुड कंज्यूम लेस ऑफ दैट। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, एंड दैट इज व्हाई यू विल कम अक्रॉस पीपल हु से कि हमें पालक कम खाने को बोला है, टमाटर के बीज कम खाने को बोला है, so that is all related to your oxalic acid content. Is this So clear? one should not have calcium supplement if they have a tendency of kidney stones. Yeah, that is very contradictory. I think sometime back there was a study. I don't remember the brand, and I don't want to name that also. तो उनकी वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स बड़े फेमस हुए थे विमेन एंड बच्चों के केस में। सम ऑफ यू माइट हैव कम अक्रॉस दैट आल्सो, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ था, बच्चों को छोटी छोटी गोलियां कैल्शियम की मीठी वाली देते हैं ना। सो दिस वाज द स्टडी व्हिच केम अप दैट वो बिकॉज मीठी होती है एंड बच्चे दे लाइक टू च्यू दैट, तो पेरेंट्स यूज्ड टू गिव लाइक 2 सैंडोज, 3 4। हाँ, सैंडोज था ना मैम? जो भी था, मैं आई डोंट वांट टू नेम दैट ब्रांड, ओके। सो व्हाट हैपेंड इज कि दैट लीड टू ओवर कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम। So you have to have a pause here and understand supplementation is only when you require that. अब उसके केस में क्या हो गया कि वो कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटेक ऑफ कैल्शियम इट स्टार्टेड टू हार्डन देयर हार्ट मसल्स ऑल्सो, बिकॉज कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंटेक हो गया ना। So that resulted in over consumption of calcium leading to hardening of soft bones also, मेरे हाथ के मसल्स या बाकी सब चीज़ें। So that is altogether a different मसला which needs to be catered down. और सप्लीमेंटेशन वगैरह तभी होनी चाहिए अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन, या आपका डाइटरी इंटेक जो है वो कम है सिर्फ तब, अदरवाइज इट कैन हैव टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स। इज दिस फाइन? Yeah. Okay. ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई चीज़ जो दिमाग में आ रही हो? Okay, so we will take a break of 10 minutes. Okay. And after 7-10 minutes, we can start off with the next unit. Is this fine with everyone? Yes, ma'am. Okay. Yeah, so Yes. we'll also get a Yes. glass of water, New chapter? freshen up. And I'll just see. I'll just let you know. Thank you. ठीक है, तो अभी मैंने अपने आप को I'm just keeping myself on mute, and then we can start with the next topic. Okay, so have water, freshen up yourself, and then we can start. Okay.
Yeah, okay, everyone back. Can we start? Yes. Okay. So, I'm just sharing my screen. So these are the small, points which are related to fact while planning meals for elderly. किन किन चीज़ों का we need to be assured of. So we know that obviously you must include all the basic food groups which we have discussed, right? Then include fruits which supply vitamin C, because we know that vitamin C is an antioxidant. Okay, so when you age, obviously you require increased amount of antioxidants which can counteract the aging process. So this is also a very long concept which we come across, that fruits and vegetables are for only kids. घर में अगर बच्चे हैं आप उनको दो, हमें जरूरत नहीं है. So that is actually wrong. Vitamin C is equally important for them in the food, what vegetables which they consume, because of this antioxidant part. Okay, then we usually say कि pressure cook the foods because of the soft texture. तो आप grate कर सकते हो, puree बना सकते हो depending upon the efficacy. Okay, then you have to avoid fried fruits, sweets, syrup, etc., because high intake of sugar or empty calories is again related to your cardiometabolic problems. Ensure good intake of water, right, and an atmosphere which is relaxed and happy. Okay, so these were some do's and don'ts related to aging. And then this is it. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो we will move on to the next thing. Anything? कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो? Yeah. Ma'am, what should be the duration of gap of iron and the nutrition that you are taking? I mean, chai, tea and nutrition, tea, coffee with the nutrition gap. अब यूजुअली से कि एटलीस्ट चाय के मतलब चाय कॉफी कितनी देर बाद पीनी चाहिए खाने के, ये बोल रहे हो? Yeah, yeah, We yeah. usually say at least 1.5 to 2 hours. Okay, So that's let much. the iron and other minerals get absorbed in your body and then you take that. Okay, okay. Thanks. अच्छा. और कुछ? Anything else? किसी को कोई और डाउट, कुछ और पूछना है? Hello. हाँ जी, हाँ जी, पूछो गौरी. Yes, गौरी, you can ask. बताओ. You want to ask anything? Maybe her network is not proper. She might come back and then ask. We can Okay. proceed. Okay. Ma'am, So the हाँ जी. sorry, just one question. Yeah. For any of these nutrients, to come back to normal, what is the time period? Like, if we focus on like how much time should it take? See, Like it if there's actually iron depends. deficiency or yeah. It depends. See, and this is, you must also understand this, कि अगर किसी को बहुत हाई लेवल का anemia है, हाई लेवल, like Yes. severe anemia है, उसके Hmm. केस में you cannot ask that person to include good iron का sources, because उसके केसेस में जो काम supplementation ने करना है या blood transfusion ने करना है वो वही करेगा. Because see, diet act as a preventive therapy. First of all, you need to prevent these things. ठीक है, पर अगर आप डाइट को एज अ करेक्टिव मेजर ले रहे हो, इट टेक्स टाइम. अगर मैं आपको आज भी बोलूँ कि आप मुझे थोड़े से एनीमिक लग रहे हो, नॉट द सीवियर कैटेगरी, so depending upon the mineral, the absorption, your physiological state, it might take anywhere between 1 to 6 months also ना. अब जैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल कम करना है, वो 1 महीने में भी नहीं होता लोगों का, राइट. इट टेक्स 2-3 months. सिमिलरली अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करोगे, किसी का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आया है, तो उसको अगर आपने मेंटेन करना होता है तो दैट विल टेक अनदर 3 months. सो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फिजियोलॉजिकल स्टेट, कौन सा मिनरल है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एंड सो ऑन. ओके, सो दैट इज नॉट समथिंग which can be Yes. fixed on. Right. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Ma'am, I have one Ma'am, question. हाँ जी. या Yeah. So, like we generally say that calcium and vitamin D should be taken in the morning due to the synthesis of the sunlight and all. So, is it like iron should be taken in the evening after the सी sunset? यू यूजुअली से कि आयरन और कैल्शियम इकट्ठे मत लो. कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है. और वो भी इसलिए होता है बिकॉज आयरन और कैल्शियम दोनों ही एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है. सो इफ यू आर टेकिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन देम. तो या तो जिसकी बॉडी, आपकी बॉडी को जिसकी ज्यादा जरूरत होगी, इट विल गेट एब्जॉर्ब, right? So that is why we say, because both of them requires acidic medium, so you should have these at different times.
अगर एक के साथ करोगे so there will be competition between these two for the absorption cycle. what should be the duration of the gap between both? यूजुअली आप मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से लेते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 घंटे 1 घंटे के बाद ही खा लोगे आयरन। Okay, so that yeah, okay. और यहाँ पे बैलेंस डाइट फॉर एल्डरली पीपल लिखा हुआ है डे के टाइम लिए, तो ये भी हमको जानने की जरूरत है, याद करने की जरूरत पड़ेगी। या आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके Ma'am, some वो कोई people will problem drink jaggery and milk. That is okay. Jaggery and milk with what? This thing you are asking? Is Ma'am, it okay to have jaggery with milk? yeah, because iron and calcium will be there, no? अरे नहीं, वो तो इतना तो कुछ नहीं होता, बिकॉज सी जैगरी में भी आयरन होता है पर कोई इतने अमाउंट्स में नहीं होता। अगेन इट इज नॉट इन वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटीज। Okay. आई थॉट कि वो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट भी होता है ना, वो तो ये भी कहता है कि फिर पालक के साथ या हरी सब्जी के साथ दूध दही नहीं खाना चाहिए, तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी। Okay, ma'am. ओके, बट ये Ma'am- यूजुअली से कि अगर आप यूजुअली ये बोलते हो कि जो आयरन है ना उसका एब्जॉर्प्शन यूजुअली ज्यादा होता है जब आप खाली पेट खाते हो, बिकॉज उसमें ना वो एसिडिक का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट अप होता है। बट ये जरूर है कि कैल्शियम एंड आयरन को थोड़ा गैप लेके लेना चाहिए। मैम वन क्वेश्चन, हाँ जी, प्रेग्नेंट वुमन में आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो दोनों मेडिसिन साथ में ही लेते हैं, तो मतलब उसमें गैप होना चाहिए या फिर इट इज ओके टू देखो हैव यूजुअली मैंने देखा यूजुअली दे टेक अ गैप एंड टेक, ऐसा नहीं होता कि इकट्ठी खा लो दोनों, बहुत कम होता है, नहीं तो हमेशा अलग अलग टाइम पे दी जाती है। ओके मैम। और कुछ anything else? Okay, so now the last unit or the last section which we are going to discuss today is related to an interesting topic actually, that is related to misconceptions and all that. Okay, so I'll just share my screen. It's unit number I think 17th unit है। I'm trying to share my screen also. There is some network issue. एक second. ठीक है, तो इस यूनिट को आप डिटेल में खुद से कर सकते हो, राइट। व्हाट आई विल डू इज कि जो मुझे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस या कुछ लगेंगे, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ओके, सो दिस इज ऑल एन इंटरेस्टिंग वन जहाँ पे वी विल बी गोइंग टू स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मिसकंसेप्शंस एंड साइंटिफिक फैसिलिटीज व्हिच आर रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन। So first is they have given a small topic regarding water. Okay, so we know that water, though it does not provide you with any nourishment or nutrient, but still it is very very important, right? कुछ लोगों को लगता है that drinking more water can help them in losing weight, right, or something like that. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। water is required as a base for many many things. You need to keep yourself hydrated. Sometimes this also occurs that to have a नॉर्मल वेट, जैसे बहुत बारी होता है जहाँ पे आपका वेट चेकिंग होनी होती है एथलीट्स के केस में, एयरलाइंस के केस में, दे नीड टू गेट थ्रू देयर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि पीरियोडिक वेट चेकिंग हो रहा है एंड दे टेंड टू पुट ऑन मोर ऑफ वाटर, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। वो वाटर का इंटेक कम कर देते हैं, डायूरेटिक्स खाने लग जाते हैं, सो दैट मोर ऑफ वाटर कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ देयर बॉडी एंड दे कैन शो दैट द वेट इज इन नॉर्मल रेंज, बट एक्चुअली दैट ऑल इज नॉट वेरी वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड दैट शुड बी really very avoided. You must have come across certain these fat loss agencies or fat loss things like VLCC. Again I'm naming something, but yeah, body care, VLCC, whatever, there are number of them, right? अब उसके केस में भी क्या होता है कि जब आप उनके पास जाते हो तो कई बार वो आपको एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाते हैं ना कि आपने भाई 1 घंटे में इतना वेट लॉस कर लिया, वो घंटे के हिसाब से आपको दिखा सकते हैं। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू कि उनके पास जो वो कवर अप्स होते हैं या पैड्स होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प इन removing water from your body. Water from your body, that is shown in case of your weight. So there is nothing like weight gain or weight loss in case of water. Water is very very essential. And ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सो वाटर यूजुअली हम अडल्ट्स के लिए बोलते हैं 50 to 55 ml per kg body weight. So these are the recommendations by ICMR. Okay, and usually we say that 6 to 8 glasses is enough
अपने आप को ओवर इंडल्ज भी नहीं करना वाटर इनटेक में। एंड अगर वाटर इनटेक आपको या फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, यू शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्लूइड्स लाइक कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड सो ऑन। ओके, देन अभी हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस कि व्हाट अदर false information or other certain contradictory myths you have come across. Okay, then there are certain things related to cereals and cereal products. So cereals and cereal products in this case is also related to carbs, right? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लो कार्ब्स डाइट, नो कार्ब्स डाइट, दीज आर नॉट साइंटिफिक। ठीक है, लो कार्ब्स डाइट यूज होती है पर उनका एक साइंटिफिक बेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं कीटो डाइट्स। ओके, तो जो बच्चे जिनको एपिलेप्सी होती है, पीपल हु हैव एपिलेप्सी, उनके केस में कीटो डाइट्स वर्क बिकॉज व्हेन यू डिक्रीज दैट carbohydrate का intake, that has better effects in case of epilepsy. Okay, but if you are healthy, you don't have any such contradictions, and you're putting someone on low carbs diet, it has to be again done very very vigilantly. Okay, because हमने पहले भी पढ़ा था कि अब ICMR ने भी रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 100 से 120 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट you require, because that much of carbohydrate will be converted to glucose, and that will be giving you energy for your, or glucose as energy for your brain activity. Okay, and you must understand here ki culprit is not always carbs, it is also the hidden calories or empty calories you are eating in, right? carbs में अगर आप complex carbohydrate खा रहे हो, it should not be a problem, लेकिन अगर आप जैम खा रहे हो, sugar खा रहे हो, which are just empty calories, that is a problem, right? अगर आप एक रोटी खा रहे हो, that is a different thing. आप रोटी के ऊपर घी लगा के खा रहे हो, that is a different thing, and that calories are not coming from roti, that extra calories are coming from the ghee you are pointing in. Okay, so low carbohydrates and etc should only be done in case of medical supervision. Okay, otherwise अगर आप normal दाल रोटी चावल जो भी अपना बेसिक वो खा रहे हो, वो आपका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है आपकी टोटल कैलोरीज के लिए। ओके, देन समटाइम्स आप देखोगे कि किसी का भी आप डाइट प्लान लेते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं, वो बंदा भी ये बोलता है कि भाई मैं तो 2 रोटी शाम को खाती हूँ, 2 रात को खाती हूँ, और मे बी अ पराठा और 2 रोटीज इन द मॉर्निंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कार्बोहाइड्रेट आर नॉट द प्रॉब्लम। कार्ब्स कौन से प्रॉब्लम करेंगे? जो इन बिटवीन मील्स तुमने एक हल्दीराम का चिप्स का पैकेट खोल के खा लिया, या तुमने लेस खा लिए, या you had a packet of biscuit in between. So these are the carbs which we need to focus on. Okay, so the type of carbohydrate, the quantity and quality also matters. The next thing which they have come about is fats and oils, which are actually blundered these days. Okay, everybody has anything to say on fats and oil. So again, we have to understand that fats and oils are really, really very important, right? Because as we discussed, fat soluble vitamins के लिए you require fat. Okay, and secondly, what about essential fatty acids, omega 3 and omega 6? So again, like carbs, fats are also not the culprits. आपको उसको मॉडरेशन में खाना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि what quality of fat you are consuming. So always have less of saturated fat, जो हमने डिस्कस किया था, like ghee, butter and so on. आप म्यूफास ले सकते हो, there is no problem, but yes, in that context 20 to 30% of your total calories should come from your oils. Okay, then the other important thing is related to cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की बात जो है वो सबसे पहले आपको ये बतानी चाहिए कि cholesterol is never present in foods of plant origin, please. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। तभी तुम्हारा ये जो घी निकलता है, जो तुम्हारी क्रीम है या बटर है, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ये एनिमल फूड से आते हैं, दूध का समथिंग समथिंग करके यू जस्ट मेक दैट। ओके, कोई भी प्लांट सोर्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो व्हाई दे आर सेइंग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट फैट्स एंड ऑयल्स, जब भी हम किसी वेजिटेबल ऑयल की एडवर्टीजमेंट देते हैं, और वो जो भी XYZ कंपनी है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाती है नो कोलेस्ट्रॉल, इट इज नॉट सम नासा साइंस दे हैव डन, उसमें होता ही नहीं है, बट जस्ट अ गिमिक टू फूल पीपल और टू मिसलीड पीपल कि देखो ये वाला तेल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बट एक्चुअली साइंटिफिकली दैट डजंट हैव कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो उन्होंने अपने तेल में कुछ ऐसा नहीं कर दिया आपके लिए कि कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है। किसी भी वेजिटेबल ऑयल में टेक्निकली कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज इन द फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। देन कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ज्यादा चक्कर आजकल है एग्स के साथ, है ना?
You might have come across people who eat eggs. They say that we only have egg whites, because जो yellow portion of egg होता है उसमें it has fat, and the white portion is always your calcium and protein whatever, right? तो जो yellow portion होता है, because it has fat, now people have started to avoid that. So I usually say that 2 to 3 whole eggs in a week, if you're healthy, you don't have any contradictory problem, like you don't have diabetes, you are not a patient of some heart disease, या आपकी lipid profile ठीक है, you can enjoy a whole egg 2 to 3 times a day. There is no problem, right? But if there is some contradiction, then you need to avoid the yolk. लेकिन अगर आप healthy हो और बस ऐसे yolk निकाल रहे हो, so that is also not good, because that yolk also gives you some amount of good fat. Okay, so avoid if there is a need. ऐसे ही फालतू में फैशन के चक्कर में आके डोंट डू कि आई ओनली कंज्यूम एग yolks. Those of us who consume. Okay, so that was about the word of cholesterol. एक आपके मैनुअल में जो गिवन नहीं है, that is trans fat. Okay, so soon in India we will have very major laws related to trans fat. Okay, अब trans fat क्या होता है? ट्रांस फैट इंडियन डाइट में अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता जा रहा है, मोर देन अ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर थिंग, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू रीहीटिंग ऑफ ऑयल. ओके, समोसे वाले ने सुबह से कढ़ाई में तेल रख लिया और सुबह से लेकर रात तक ही he is reheating that oil. So when you reheat at that oil actually becomes problem, because उसके अंदर there is production of trans fat. Okay, and we usually say कि जो इंडियन स्नैक्स में हम ये मट्ठी, पकौड़ा, समोसा, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं ना, that is all source of trans fatty acids which you need to slow down, which you need to consume lesser. Okay, so and we usually say कि अब घर में भी हम तेल यूज करते हैं तो हम कितनी बार उस तेल को रीयूज कर सकते हैं, तो एफएसएसआई बोलता है कि 2 से 3 बार, राइट? अगर आपने कोई कढ़ाई में कुछ फ्राई कर लिया, आप उसको फेंक तो नहीं दोगे ना, तो आप उसको कितनी बार रीयूज कर सकते हो? मैक्सिमम 2 to 3 times. बट दी टेक्निक इज व्हाट, कि आप उस कढ़ाई से तेल निकाल के उसको अच्छे से छानिए, रिफाइन दैट ऑयल, ठीक है, एंड देन कीप इट, बिकॉज अगर उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाएंगे, दैट कैन लीड टू कंटैमिनेशन. Okay, so this was about your oils and fat. और क्या given है? एक सेकेंड. Ma'am, is it necessary to keep changing the oils? हाँ, I'll come to that. I'll take your queries. मैं ना बस इसका एक बार देख लूँ. हाँ, अब दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे आपने एडवर्टीजमेंट जिसमें कुछ मिक्स्ड अप प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं, क्लेम्स अबाउट अदर फूड्स, जैसे इन फैंसी में यू माइट हैव कम अक्रॉस थिंग्स लाइक सेरेलैक एंड ऑल दैट, राइट? सो सेरेलैक एंड ऑल दैट इज ऑल्सो नथिंग विच इज़ वेरी न्यू. हम हमेशा ये बोलते हैं दैट दीज आर प्री मिक्सेज, एंड एट योर होम लेवल ऑल्सो यू कैन मेक दीज प्री मिक्सेज एट योर होम. ओके, तो आप जैसे डिफरेंट पल्सेस को स्प्राउट्स करके रख सकते हो और उसको पीस दो. आप डिफरेंट जैसे तुम्हारा गेहूं होता है या तुम्हारे जितने भी मिलेट्स होते हैं, उसको भी यू कैन एक्चुअली जर्मिनेट एंड कन्वर्ट दैट इनटू द पाउडर. ओके, सो दैट इज ऑल दे हैव गिवन. दिस इज वेरी बेसिक. ठीक है, ये पढ़ लेना, अगर इसमें तुम्हें कुछ डाउट लगेगा देन आई कैन टेक इट अप. ओके, सो दे हैव गिवन डिफरेंट things related to misconceptions. So now I'll take your questions. Yeah, what was your question? Is it necessary that we keep the cooking oil keep changing? Yes, right. Why? Because there are different see, every oil, when you will be going to master's level or some other level, डिप्लोमा लेवल पे भी जाओगे, तब भी आपको ये पता चलेगा कि जितने भी ऑयल्स हम कंज्यूम करते हैं ना, उनका सबका अपना अपना फैटी एसिड प्रोफाइल होता है. ठीक है, so we usually say that don't keep on consuming only one type of oil, because that will be predominant in one type of fatty acid profile. So usually it is said that after 2-3 months you should change the source of your oil. सोर्स का मतलब समझते हो कि ये नहीं है कि अभी मैं सोयाबीन ऑयल खा रही हूँ एक कंपनी का और 2 महीने बाद मैंने कंपनी चेंज कर दी. कंपनी चेंज नहीं करनी है. 2-3 महीने बाद आप मे बी पीनट ऑयल ले आओ, या उसके 2-3 महीने बाद आप राइस ब्रांड ले आओ. सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन रोटेटिंग योर ऑयल्स, so that fatty acid profile can be catered to. Okay, any other questions? Ma'am, you earlier mentioned about pulses you can germinate and then Yeah, incorporate in child's diet. Yeah, how can that be done? Germinate as in how? जैसे हमारा ना, इसको हम बोलते हैं ARF. I'll just type in ARF, amylase rich flour.
ठीक है. सो यू विल गेट सम ऑफ द रेसिपीज ऑनलाइन ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा सीरियल्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको यू एक्चुअली जैसे हम सोक करके रखते हैं और वो जर्मिनेट हो जाता है, तो वंस इट इज जर्मिनेटेड यू कैन सन ड्राई दैट एंड यू कैन एक्चुअली ग्राइंड दैट इन अ मिक्सर. और उसको मे बी विथ सम फॉर्म ऑफ दाल या समथिंग लाइक दैट यू कैन मिक्स एंड दैट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ सेरेलिक फॉर अ बेबी, जैसे एक होम मेड प्री मिक्स होता है. Okay, okay. It Okay. can be stored for a while, as in, It can be few stored for a while. months. And you know ARF में क्या होता है कि जो amylase की activity होती है ना, because of this fermentation process and everything, it's get increased up. So that is easy for the child also to digest. Amylase rich. Amylase का enzyme बढ़ गया ना, so that is a carbohydrate which is well digested or easy to digest by child. Okay, but even for adults also? I mean, if Adults के sensitive लिए तो है, stomachs. but yeah you can, yeah. जैसे अब हम fermented चीजें खाते हैं, so they are better tolerated ना. Right, right. Yes. Yeah, because it changes the composition. It converts the complex, substances into simpler ones, which are, more easy to digest or more easy on your stomach. Mm-hmm. So that Right. you can do. Yeah. Anything Okay. else? Right. Yeah. और कुछ? किसी को और कोई doubts? Others, you can unmute yourself and interact. Not for now, ma'am. हाँ जी? I'm saying not for now. I think we need to study. अच्छा, ठीक है. Okay. So you want me to continue with next unit or you want to do it in next class? Next would be better. हाँ? Next comes. Next class? Okay. यही expected था वैसे कि आप लोग यही बोलोगे. So it's okay. You just go through your whatever things we have gone through. ठीक है? And then I'll be doing only units which I feel are the important ones ना, which need my this thing. ठीक है? कुछ अगर बहुत basic units हैं that you can do yourself also. And what I'm planning is कि जो तुम्हारा last session है, that I'll be keeping for all your doubts. या उस session से पहले you people can just let me know if there is any important topic or anything which you want me to repeat. ठीक है. सो यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 2-3 टॉपिक्स जो आपको लगता है कि शायद दोबारा समझने की जरूरत है या यू वांट टू डिस्कस इट अगेन. दैट ऑल वी कैन डू इन द लास्ट सेशन. इज दिस फाइन? Now our this class is left ना, adolescence का बाकी है ना अपना हाँ हाँ unit. Okay. हाँ, और बाकी एक छोटा सा यूनिट एक और है. सो योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन व्हाट? 12th Monday. मंडे ना. तो मंडे को वो 3 से 5 ही होगी. Okay, ma'am. ठीक है. मंडे को इट विल बी फ्रॉम 3 to 5. Ma'am, could you just mention a little bit about filtered and refined oils and filtered oils, Filtered, see, every oil, as I what is the said, difference? has Yeah. a different composition. Fatty acid, जिससे पहले के टाइम पे people used to rely on देसी घी, है ना. अभी भी बोला जाता है that there are certain conflicts जहाँ पे बोला जाता है that no, you can consume देसी घी, it is perfectly fine. But from nutritional point of view, if you ask me, देसी घी is a saturated fat. Okay, it does have somewhat quantities of vitamin D, but then you have to understand that totally depends on the physical activity you are indulging. So for a child, for a preschooler, if you're giving him a teaspoon of desi ghee, it is fine because that will be giving him vitamin D and other good properties. But for adult who are not indulging in any sort of physical activity, this will be a problem, right? Because that is a saturated fat, no matter what type. So saturated fat has been directly linked to your cardiovascular disorders. Refined oil, mustard oil, see, हम जब काउंसलिंग करते थे ना, तो हम हमेशा ये बोलते थे कि mustard oil has a very different type of profile. So try to make one sabzi in a mustard oil, which is usually a dry vegetable, because दाल वगैरह को तड़का के लिए तो you either use a ghee or your refined oil. Okay, and nowadays you also have blended oils which have come up. अगर आप सफोला या ये सब की साइट्स पे जाओगे, सो ब्लेंडेड ऑयल्स का क्या कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज अगेन फैटी एसिड प्रोफाइल डिफरेंट होती है ना, सो दे हैव एक्चुअली मर्ज द 2 ऑयल्स टुगेदर, जो शायद कीपिंग क्वालिटीज के व्यू पॉइंट से या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन गो टुगेदर. सो दैट विल इम्प्रोवाइज द ऑल ओवर फैटी एसिड प्रोफाइल. बट बाय राइट हैंड थंब रूल, don't consume saturated fatty acids in excess.
going for MUFAs and PUFAs, which include all your soybean oil or vegetable oils and so on. Omega 3, omega 6 के लिए, those of you who consume fish, well and good, very good actually, because that tends to increase your HDL levels also. ठीक है, तो जो तुम्हारा omega 3 omega 6 fatty acid है, that is related to formation of good cholesterol, which is HDL. And HDL actually act as a protection for your cardiovascular diseases. तो HDL लिपिड प्रोफाइल अगर किसी ने कभी कराई होगी, HDL जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा है, राइट? बट कोलेस्ट्रॉल, LDL, TG जितना ज्यादा आएगा उतनी गड़बड़ है, ठीक है? सो HDL is always improved when you have good sources of essential fatty acids, या your physical activity is high. Okay, so this is the thing. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, okay. Anything else? किसी को और कुछ पूछना है, कोई डाउट्स? Okay. So I think that's all for today, and we will continue on Monday with the next topic. ठीक है, तब तक आप भी you just grasp these topics, और अगर किसी को कुछ लगेगा we can always discuss that. Fine? Thank you, ma'am. Okay, Thank you, yeah, ma'am. cool. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, take care everyone. Bye-bye. Thank you, Yeah, ma'am. bye. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you, bye-bye. Bye.